So we were discussing chapter motion, and last class, I think last term that I discussed was velocity. Velocity. And we know what is velocity. It is displacement. Velocity is displacement upon time. Displacement of a body per unit time is called what? Velocity. Or we can say that distance covered in a definite direction divided by time, or per unit time is what? Velocity. SI unit of velocity is meter per second, and CGS unit centimeter per second, and it is vector quantity. What kind of physical quantity? And we already discussed the term speed. Speed is distance upon time. और speed और velocity में difference क्या है? Speed is scalar, velocity is vector. Speed is distance per unit time, velocity is displacement per unit time. Now, uniform velocity, it is new term, uniform velocity. We know about uniform speed. If a body covers equal distances in equal interval of time, we say that body is in uniform speed. लेकिन uniform velocity में होने के लिए the body must move, that body must move in a straight path. जब हम speed का बात बोलते हैं तो straight path हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ठीक कर लेगा उसको. That velocity, if a body moves along a straight path covering equal distances in equal intervals of time, 2 meter, suppose 1 second, next 2 meter, 1 second, next 2 meter, 1 second, और बॉडी का पाथ स्ट्रेट पाथ डेफिनेट डायरेक्शन में. यहाँ एक छोटा सा करेक्शन करना है, दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्पेलिंग करेक्शन कर लेना. So, under what condition a body is said to be moving in uniform velocity? If the body moves in a straight path and covers equal distances in equal intervals of time. अब यहाँ पे एक और बात जानना है. A body moving with uniform velocity also moves with uniform speed. अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो क्या वो यूनिफॉर्म स्पीड में भी होगा? होगा ही, क्योंकि वो बॉडी भी क्या कर रहा है? इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है? कांस्टेंट, फिक्स है. इसीलिए हम लोग इसके लिए टर्म यूज कर सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी. कहने का मतलब यह है कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा तो वो यूनिफॉर्म स्पीड में भी होगा. लेकिन एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म स्पीड में है, एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म स्पीड में है तो क्या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा? जरूरी नहीं है. हो सकता है एक कंडीशन में. इफ द बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ, स्पीड एंड वेलोसिटी आर same. If a body moves along a straight path, speed and velocity are same. If a body moves along a straight path covering equal distances in equal interval of time, then uniform velocity of the body is same as that of the uniform speed. Have you understood? समझ में आ रहा है? तो जब भी इस चैप्टर में नॉर्मली हम टर्म यूज करेगा ना वेलोसिटी, नॉर्मली जब वेलोसिटी टर्म यूज करेगा तो तुम लोग समझ जाना बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है. किस में है? और जब हम नॉर्मली स्पीड टर्म यूज करेगा तो तुम लोग क्या समझेगा? यूनिफॉर्म स्पीड में. ओके, नोट डाउन कर लो. SI unit of velocity is meter per second. CGS unit of velocity is centimeter per second. Now a simple question related to velocity, uniform velocity. Calculate the uniform velocity of a body if it covers 500 meter in 20 seconds along a straight path. बहुत सिंपल क्वेश्चन है.
हम लोग को वेलोसिटी कैलकुलेट करने बोला है और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 500 मीटर और टाइम कितना 20 सेकेंड्स एंड यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम ही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी is displacement upon time, s here displacement और t यहाँ पे क्या है टाइम। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते वक्त डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज नहीं किया गया तो वो अंडरस्टूड होता है कि यहाँ किसका बात हो रहा है स्ट्रेट पाथ। दैट मीन्स व्हाट स्ट्रेट पाथ है, इसका मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज 500 meter, time 20 seconds, so it will be 25 meter per second, 25 meter per second। ये एकदम नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग को डिस्प्लेसमेंट ये पता था, हम लोग को टाइम पता था, हम लोग को वेलोसिटी कैलकुलेट करना। Another question, just write down the question, think about it। Here it is given, calculate the displacement of a body in SI unit। इस बार आंसर कैलकुलेट करना है कौन सा यूनिट में SI। If the body moves with uniform velocity of 54 km per hour for 5 minutes। तो यहाँ पे बॉडी का यूनिफॉर्म वेलोसिटी बता दिया कितना 54 किलोमीटर पर आवर और टाइम यहाँ गिवन है कितना 5 मिनट्स और हमको आंसर फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट का, वो भी कौन सा यूनिट में SI यूनिट। और डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट क्या होता है मीटर। डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट मीटर। तो हमको क्या करना चाहिए फॉर्मूला यूज करने से पहले ही, हमारा सजेशन है फॉर्मूला यूज करने से पहले ही कन्वर्शन कर लो SI यूनिट में। तो 54 किलोमीटर पर आवर इज 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करके बता दो कितना आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया वेलोसिटी। 5 मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करेगा 5 इंटू 60 सेकेंड, दैट इज 300 सेकेंड्स। अब हम लोग के पास वेलोसिटी SI यूनिट में है, टाइम भी SI यूनिट में है। वी कैन इजीली फाइंड आउट डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट। वी नो द फॉर्मूला क्या हम लोग के पास V इक्वल्स टू S/T। सो S इक्वल्स टू VT एंड V का वैल्यू कितना दिया हुआ 15 मीटर पर सेकेंड, टाइम 300 seconds। So you will get answer as 4500 meter। 4500 meter is the answer in SI unit। So displacement or distance covered in SI unit is 4500 meter। इसको किलोमीटर में आंसर नहीं देना हम लोग को क्योंकि पूछा किस में है SI यूनिट में। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नेक्स्ट टर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बॉडी का वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म बोलने के पीछे क्या कंडीशन है देखना डेफिनेशन में। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। बोर्ड में देखना तभी समझ में आएगा डेफिनेशन। एक बॉडी डेफिनिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है बट द बॉडी इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। डायरेक्शन तो फिक्स है, इसका स्ट्रेट पाथ है, लेकिन बॉडी इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो वी कैन से दैट द बॉडी इज इन। ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब पता चला क्या तुम लोगों को। नॉन यूनिफॉर्म मतलब नॉट सेम। इसका वेलोसिटी यहाँ पे अलग है, देखो कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 2, यहाँ पे तो वेलोसिटी सेम नहीं है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म। इसलिए क्या है नॉन यूनिफॉर्म। एंड
if it covers equal distances in equal intervals of time but the direction of the motion keeps on changing। बोर्ड में देखना, अब यहां पे एक कंडीशन और बोला गया, this time body is covering equal distances in equal intervals of time, 2 meter in 1 second, next 2 meter in 1 second, next 2 meter in 1 second, next 2 meter in 1 second। ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है क्या? नहीं है। क्यों? डायरेक्शन चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज माना जाता है। क्या माना जाता है? तो अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो हम लोग बोलेगा वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ये यूनिफॉर्म होगा क्या? ये भी नॉन यूनिफॉर्म। इसमें से कौन सा बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में हो सकता है? सेकेंड वाला यूनिफॉर्म स्पीड में हो सकता है। क्यों? यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन क्या है? A body is said to be moving with uniform speed if it covers equal distances in equal intervals of time। समझ में आ रहा है? Equal distances in equal intervals of time, ये कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है। तो सेकेंड बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। फर्स्ट बॉडी क्या यूनिफॉर्म स्पीड में है? क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है? क्या हाँ, ये फर्स्ट बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है? क्या नहीं है, बिकॉज द बॉडी इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इस डेफिनेशन को एक बार रीड कर लो और ये दोनों एग्जाम्पल देख लो, समझ में आना इजी होगा कंपैरेटिवली सेकेंड वाला, क्योंकि इस डेफिनेशन में दो कंडीशन है और दोनों कंडीशन के लिए हम दो डायग्राम ड्रॉ किया यहाँ पे। डन। लुक एट दिस क्वेश्चन और सॉल्यूशन का कोशिश करना है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, 2 मिनट सोचो इसके बारे में। Here it is given body moves in a semicircular path and radius is given कितना? 7 meter। A body moves in a semicircular path of radius 7 meter और टाइम दिया हुआ कितना? 11 seconds। 11 seconds। You are asked to calculate speed and you are asked to calculate velocity। तो यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट करना है और स्पीड हम लोग जानते हैं, स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। इस केस में डिस्टेंस कवर्ड कैसे फाइंड आउट करता है? वी ऑलरेडी डिस्कस सेमी सर्कुलर पाथ, इट इज व्हाट? पाई आर एंड टाइम यहां दिया हुआ कितना? 11 सेकेंड्स। तो पाई आर 22/7 इंटू रेडियस कितना? 7 मीटर बाय 11 सेकेंड्स। ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा। 22/11 मीटर पर सेकेंड कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड इसका कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। और हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है? डायमीटर ट्वाइस आर। याद है सेमी सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? ट्वाइस आर। और टाइम 11 सेकेंड्स। ट्वाइस आर 2 इंटू 7 मीटर बाय 11 सेकेंड्स। 14/11 मीटर पर सेकेंड। डिवाइड किया कोई? 1.27 1.27 मीटर पर सेकेंड। 1.27 मीटर पर सेकेंड। सॉल्यूशन नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। हैव यू नोटेड डाउन द सॉल्यूशन? कंप्लीट हो गया? डन। लास्ट क्लास में डिस्कस द टर्म एवरेज स्पीड। याद होगा तुम लोगों को एवरेज स्पीड क्या था?
टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। जब वेलोसिटी का टर्म यूज करते हैं हम लोग तो किसका टर्म में करते हैं? इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? इफ आई आस्क यू, एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड व्हाट? एवरेज वेलोसिटी। एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट वही होगा, मीटर पर सेकेंड एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड वेलोसिटी है तो कौन सा क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी। डेफिनेशन और इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लो। हो गया कंप्लीट? क्या क्या टर्म? आज का क्लास का फर्स्ट टर्म था वेलोसिटी, उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर अभी एवरेज वेलोसिटी। यहां पे एक स्पेशल बात बता रहा हूं, आज हम लोग आज का क्लास में एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन टर्म में डिस्कस करेगा। एक्सीलरेशन, बॉडी को एक्सीलरेशन में कब बोला जाता है? इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। क्या? बॉडी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल कार या एक्टिवा या कोई भी व्हीकल चलाता है, उसमें एक पार्ट होता है एक्सीलरेटर। क्या काम है उसका? स्पीड बढ़ाना। एक्सीलरेटर यूज करके वी कैन इंक्रीज व्हाट? स्पीड। और एक और पार्ट होता है ब्रेक। ब्रेक का काम क्या है? डिक्रीज करना ना। तो जब हम ब्रेक यूज करते हैं तब हम व्हीकल को कौन सा कंडीशन में लाता है? रिटार्डेशन में। किसमें? और जब हम एक्सीलरेटर यूज करते हैं तो व्हीकल को कौन सा कंडीशन में लाता है? एक्सीलरेशन में। किसमें? तो अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं है, its velocity keeps on changing, that means the body is in either acceleration or retardation। अगर बॉडी या एक्सेलरेशन में है या फिर रिटार्डेशन में, उस केस में एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक अलग फार्मूला हम लोग यूज कर सकता है। अगर हम लोग के पास टोटल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू नहीं है और टोटल टाइम का वैल्यू नहीं है, तब भी हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कब करेगा? जब बॉडी या तो एक्सेलरेशन में होगा या फिर तब हम लोग ये एडिशनल फार्मूला यूज कर सकता है। लेकिन नॉर्मली हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन जल्दी नहीं मिला हम लोग को क्वेश्चन में, तो हम लोग ये फार्मूला भी यूज कर सकता है। क्या फार्मूला है? u प्लस वी बाई टू, वेर u इंडिकेट्स, अब इस चैप्टर में नया सिंबल मिलेगा। अगर बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, चेंजिंग है, तो स्टार्टिंग का वेलोसिटी को हम लोग बोलेगा इनिशियल, और बाद में किसी टाइम फ्रेम के बाद में जो वेलोसिटी होगा उसको क्या बोलेगा? फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलेगा? सो एवरेज वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय अनदर फार्मूला। वो दूसरा फार्मूला क्या है? u प्लस वी बाई टू। u प्लस वी बाई टू, वेर u इज, v is, and under what condition this formula can be used? If the body moves with uniform acceleration or uniform retardation। नोट डाउन कर लो, अभी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन समझ जाएगा तब आराम होगा इसको यूज करना। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, u प्लस वी बाई टू। u क्या है? v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म एक्सेलरेशन। जब हम जनरली एक्सेलरेशन बोलेगा तो तुम लोग समझना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बात हो रहा है। जब हम जनरली रिटार्डेशन बोलेगा क्या समझना? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्लास 9 लेवल में स्पेसिफिक बताया हुआ नहीं भी रहने से एक्सेलरेशन क्या समझेगा हम लोग? बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। और रिटार्डेशन में हम लोग क्या समझेगा? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक बॉडी का वेलोसिटी पोजीशन ए में मान लो 2 मीटर पर सेकेंड था, और 2 सेकेंड के बाद में ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज? इंक्रीज। तो हम बोलेगा बॉडी इज इन एक्सेलरेशन। बॉडी इज इन
एक्सेलरेशन। और डेफिनेशन क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन का सिंबल क्या है? ए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इस डेफिनेशन से अगर फ्रेम करेगा हम लोग तो क्या लिखेगा? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी चेंज हुआ, उसको कैसे फाइंड आउट करेगा? चेंज कैसे पता लगाते हम लोग? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का सिंबल क्या बताया? फाइनल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u बाय टाइम। डेफिनेशन से फॉर्मूला डिराइव कर लिया हम लोग। क्या? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिल गया हम लोग को। एक्सेलरेशन का मेन फॉर्मूला क्या है? a इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी। व्हाट इज द मेन फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? a इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी। वहां पे v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है? व्हाट इज t? टाइम। एंड SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जब कैलकुलेट करेगा उसका SI यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे लिखना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड square is the CGS unit. So if I ask you what is acceleration? The rate of change of velocity is called acceleration. How will you find out acceleration of a body? By using the formula A equals to what? V minus U by T. That is change in velocity by time taken. और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी? वेक्टर। तो हम लोग जो मेन क्वांटिटी डिस्कस किया उनमें से आराम से तुम लोग को पता होगा, डिस्टेंस कवर्ड स्केलर है या वेक्टर? स्केलर। डिस्प्लेसमेंट स्केलर या वेक्टर? वेक्टर। स्पीड स्केलर। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, क्लियर है? एक्सेलरेशन वेक्टर। और मेन फॉर्मूला A इक्वल्स टू V माइनस U बाई टी। तो 5 मिनट्स में 5 डेफिनेशन आज का क्लास का लर्न करना है। फर्स्ट वन वेलोसिटी, सेकंड वन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, थर्ड वन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन एवरेज वेलोसिटी एंड लास्ट वन एक्सेलरेशन। सो डेफिनेशन क्या मिला हम लोग को? एक्सेलरेशन का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर इस बॉडी का केस में कैलकुलेशन करेगा तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड इन, और अगर हम यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन बताता है, इसका मतलब होता है 2 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट टर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या टर्म है? तो द टर्म इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तुम लोग दिमाग में एक चीज सेट कर लो, इस चैप्टर में जब भी वो ये यूनिफॉर्म वर्ड मिले ना, उसका मतलब सेम है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सेम एक्सेलरेशन, और वी कैन से कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है तब हम बोलेगा बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आज का क्लास में सबसे ज़्यादा दिमाग यहीं पे यूज़ करना समझने के लिए। पहले ट्राई करो समझने का, हम जो एग्जाम्पल दे रहा है उससे ट्राई करना। एक्सेलरेशन यहाँ बोला कि एक बॉडी ऐसे जा रहा, मान यहाँ पे उसका वेलोसिटी 0 था, 1 सेकेंड के बाद में उसका वेलोसिटी हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी बोल रहे हैं,
1 सेकंड के बाद में एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेटर यूज करने से स्पीड क्या होगा, स्पीड या वेलोसिटी क्या होते रहेगा, इंक्रीज। तो 1 और सेकंड के बाद में उसका वेलोसिटी हो गया 4 मीटर पर सेकंड। 1 और सेकंड के बाद में उसका वेलोसिटी हो गया 6 मीटर पर सेकंड। 1 और सेकंड के बाद में उसका वेलोसिटी हो गया 8 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, बॉडी एक्सेलरेशन में है कि नहीं। हमको चेक करना है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है कि नहीं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब बॉडी का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, यहां जितना होगा इधर भी इतना सेम रहेगा सब जगह पे। अब हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं बॉडी का एक्सेलरेशन, यहां पर कैलकुलेट करते हैं हम लोग। फॉर्मूला है हम लोग के पास, एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू व्हाट, v माइनस यू बाय टी। फाइनल वेलोसिटी कितना, यहां से यहां तक फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 और टाइम कितना 1 सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग को मिला 2 मीटर पर सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम इधर भी अगर कैलकुलेट करेगा तो सेम आंसर आएगा, तुम लोग ट्राई कर लेना। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इधर भी कैलकुलेट करेगा तो सेम आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां पर भी एक्सेलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी का एक्सेलरेशन तो चेंज, एक्सेलरेशन तो सेम आ रहा है। और बॉडी अगर एक्सेलरेशन में होगा तो उसका स्पीड वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो ये हो रहा है यहाँ पे, बॉडी इज इन एक्सेलरेशन बट एक्सेलरेशन रिमेन्स, body is in acceleration but acceleration remains same, uniform, therefore we can say that body is in। लेकिन एक और कंडीशन है, ये एक्सेलरेशन स्केलर है या वेक्टर, वेक्टर है तो उसमें स्ट्रेट लाइन मोशन का बात भी बताना होगा। वेक्टर का मतलब डेफिनेट डायरेक्शन का बात आ गया। सो द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, the acceleration of a body is said to be uniform acceleration if it travels in a straight line, if it travels in a straight line, and its velocity increases by equal amount in equal intervals of time। समझ में आ रहा है। और एक बॉडी को अगर हम फ्री फॉल में रखें, मान लो ये अर्थ का सरफेस है और एक बॉडी को ऊपर से नीचे गिरने दे हम लोग फ्री फॉल में, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होता है, उसका एक्सेलरेशन फिक्स होता है। गिरता हुआ हर बॉडी का एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाता है। कितना लिया जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका मतलब क्या होता है वो देखो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। मतलब एक बॉडी जब ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, फ्री फॉल में होता है, बंजी जंपिंग लाइक दैट, फ्री फॉल में होने से हर एक सेकंड में बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज होता है। हर एक सेकंड में कितना इंक्रीज, 9.8 मीटर पर सेकंड। तो मान लो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे वेलोसिटी था 0, 1 सेकंड के बाद में कितना हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड। एक और सेकंड के बाद में कितना हो जाएगा 2 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड। एक और सेकंड के बाद में कितना हो जाएगा 3 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब कैलकुलेशन करेगा एक्सेलरेशन सभी जगह पे, एक्सेलरेशन सभी जगह पे क्या आएगा सेम आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। घर में ट्राई करना ये चीज, जैसे यहाँ पे हम कैलकुलेट करके दिखाए। इस वर्ड का टर्म का मीनिंग समझ में आएगा। एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमेशा सेम होगा, उसका वेलोसिटी चेंज होने का रेट हमेशा सेम होगा, और उसका उस बॉडी का एक्सेलरेशन कहीं पर भी हम लोग कैलकुलेट करेगा तो सेम ही आएगा। सो एग्जाम्पल ऑफ अ बॉडी मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फॉल्स अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तुम लोग में से कोई बता सकता है इस एक्सेलरेशन के लिए एक स्पेशल साइंटिफिक टर्म है, इस एक्सेलरेशन के लिए एक स्पेशल टर्म है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस एक्सेलरेशन को क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू
ड्यू टू व्हाट, ग्रेविटी, और इसके लिए एक सिंबल यूज किया जाता है स्मॉल जी। स्मॉल जी इज द सिंबल यूज फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस टर्म को यहां रीड करो, इस एग्जाम्पल को देखो, 2 मिनट अपना दिमाग को यूज करो कि एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म बोलने का कंडीशन एक है, बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में होना चाहिए, और सेकेंड कंडीशन उसका एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सेम होना चाहिए।